Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Aditya Educations. I hope you all are doing well and ready to learn something new today. Okay, so let's begin today's topics. Let's quickly revise what we studied in our previous class. We learned about the role of humans in changing the land surface. We understood that human activities such as deforestation, agriculture, mining, industrializations, construction of roads and buildings, and urbanizations have greatly changed the Earth's surface. These are the human rule, that the changing of the land surface. Okay, but is it only humans who change the land surface? Yes or no? No. Okay, so nature also play a very important role. Natural agents like rivers, wind, glaciers, and sea waves continuously shape and reshape the Earth's surface. Among these, rivers are one of the most powerful agents of change. So, in today's class, we will study the stages of a river in detail. We will understand what is the upper course of a river, what happens in the middle course, what are the features of the lower course, how does a river change from its source to its mouth, which landforms are formed in each stage and why are they important. So today these are we understood. So I will explain each stage in a very simple and easy to understand way with clear examples. So make sure you watch this video till the end. The topic is very important for your CBSE class 9th geography examinations and will help you answer both short and long answer questions confidently. So without wasting any more times, let's start today's lessons. Okay, शुरू करते हैं आज का क्लास. ठीक है, ये हम लास्ट स्लाइड में पढ़े थे लास्ट क्लास में. आगे देखते हैं क्या है. द अपर कोर्स और द माउंटेन स्टेज. अपर कोर्स ये रिवर का हम पढ़ रहे हैं. अपर कोर्स सबसे वाला सबसे जहां से ओरिजिन हुआ है उसी जगह का हम पढ़ रहे हैं. सो in this stage as the slope of the land is generally very steep. ठीक है, इनके जो स्लोप मतलब जो ढलान होता है जहां से ये निकलता है, जहां से ये इसका ओरिजिन है, उसमें से क्यों कहां से ओरिजिन होता है कोई भी रिवर्स, जैसे कि हमारा हिमालयन रिवर्स हिमालयन पर्वत से निकलता है. और जो हिमालय इतना ऊंचा एक माउंटेन है, उसी वहां से निकलेगा तो क्या होगा, जो उसका स्लोप कितना होगा, स्टीप स्लोप होगा, मतलब ज्यादा ढलान होगा, ऊपर से नीचे ज्यादा ढलान होगा. देखो ये इस तरह से ढलान होता है, इस तरह से ऐसे नीचे स्लोप ज्यादा है, इस तरह से स्लोप देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटरफॉल भी ज्यादा देखने को मिलता है. तो ये ओरिजिन वाला है, अपर कोर्स है, ठीक है, माउंटेन का. The water of the rushes down with a great speed. बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ से पानी निकल के नीचे आता है. Consequently, the river is not only erode its sides and bed but also carries stones and fragments of rocks with it. यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, जो रिवर्स ऊपर से नीचे आ रहा है वो सिर्फ इरोड्स या इरोजन करके जो मिट्टी वगैरह होता है उसको नहीं लाता, उसके साथ साथ क्या करता है, बड़े बड़े स्टोन्स को भी नीचे ले आता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो जो इन दिस वे द रिवर इज बिजी इन इट्स अपर कोर्स. अपर कोर्स में इसीलिए हमेशा क्या होता है, बिजी ही रहता है, मतलब स्टीव्स होने के कारण ज्यादा स्पीड होगा, पानी ऊपर से नीचे आएगा, उसके साथ साथ इरोजन करके जो बड़ा बड़ा स्टोन को भी नीचे ले आएगा, इतने इतने बड़ा बड़ा स्टोन को भी वो नीचे ले आएगा. ठीक है. सो upper course in erosion and transportation by eroding its sides and bed, it develops gorge, V-shaped valley and waterfall and rapids etc. देखो क्या क्या बनाता है यहाँ से, अपर कोर्स में क्या क्या बनता है ज्यादातर हमको देखने को मिलता है. याद रख लो, कोई भी रिवर्स है ना, उसका 3 स्टेज होता है. पहले अपर कोर्स होता है, सबसे जहां से निकलता है वहां का जो कोर्स है उसको क्या बोलते हैं, अपर कोर्स. ये ओरिजिन है उसका. यहाँ से नीचे ज्यादा ढलान होने के कारण बहुत ज्यादा मिट्टी लेके चला आएगा नीचे, बड़ा बड़ा पत्थर को भी लेके चला आएगा.
तो यहाँ से ये हमेशा बिजी रहता है स्पीड होने के कारण, ठीक है। और क्या क्या बनाता है, जर्ज बनाता है। ये जर्ज देखो इस तरह की, इस साइड का ये जो दिख रहा है तुमको जर्ज, ये जर्ज बना रहा है। मतलब यहाँ का जो मिट्टी या कोई स्टोन है उसको वो इरोजन करके, इरोड्स करके नीचे ले आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टीप लाइक शेप बन रहा है, एक जैसे सीढ़ी की तरह क्या बनता है, शेप बनता है। इसको जर्ज बोलते हैं, ठीक है। जहां पे ये निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, भी शेप वैली बनाता है। देखो इस तरह से यहाँ से निकल रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से उनका भी शेप देखने को मिल रहा है। देखो ये भी शेप देखने को मिल रहा है। तो जहां से ओरिजिन होता है यहाँ पे भी शेप वैली देखने को मिलता है। अगर तुमको क्वेश्चन में आए तो कि अपर कोर्स में क्या क्या हमको देखने को मिलता है, भी शेप वैली इज कॉमन। यहाँ पे भी शेप वैली ज्यादातर देखने को मिलेगा, जर्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। और वाटरफॉल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कि स्लोपिंग ज्यादा है। स्लोपिंग के कारण क्या होता है, ऊपर का पानी नीचे स्पीड में आएगा। तो यहाँ पे वाटरफॉल भी ज्यादातर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रैपिड्स भी ज्यादातर देखने को मिलता है हमको। सो कीवर्ड्स क्या होता है इनका, कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स इन अपर कोर्स में इरोजन होता होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। इरोजन मतलब जो साइड साइड का जो मिट्टी या स्टोन है उसको वो इरोड करके नीचे ले आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसी जो इरोजन किया हुआ जो मिट्टी है या स्टोन है उसको ट्रांसपोर्ट करके अदर अलग सी जगह में वो ले जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद देखो व्हेन द रिवर फ्लोज थ्रू एन एरिया मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स, देखो ये है, इसको जर्ज बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से आ रहा है ना, इसको ही जर्ज बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए नेरो वैली विद स्टीप स्लोप, एक नेरो दिख रहा है ना, नेरो वैलीज बना रहा है। और इसमें क्या होगा, स्टीप स्लोप्स होगा, स्लोपिंग होगा ऊपर से नीचे, जो कि पानी जल्दी यहाँ से ऊपर से नीचे आ पाएगा। और इसी शेप को क्या बोलते हैं, हम जॉर्ज बोलते हैं, ओके। सो इट मेक्स ए नेरो वैली, नेरो वैली बनाता है। सच वॉल जैसी, ये देखो इस तरह की वॉल बना रहे, वॉल वॉल बना रहा है या नहीं, इस तरह की वॉल बनाएगा। और सच ए नेरो वैली विथ स्टीप्स वॉल इज कॉल्ड जॉर्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉर्ज बोलते हैं। तो जॉर्ज कहाँ पे बनता है, जो इसके हम क्या बोलेंगे, जो अपर कोर्स में जहां से ये ओरिजिन होता है उसमें वैली बनता है, जॉर्ज बनता है, वाटरफॉल देखने को मिलता है अपर कोर्स में। समझ में आ गया, ओके। और क्या है देखते हैं थोड़ा। समटाइम्स a river flows through an area of soft rocks and heavy rainfalls. Sometimes river flows through an area of soft rocks, जो देखो हेवी रेनफॉल की वजह से कुछ जगह में क्या करता है, जो रिवर्स ज्यादातर पानी लेके चला आता है। इन सच ए केस द साइड ऑफ द रिवर्स आर इजीली एरोडेड, जो यही यही वजह है कि जो रिवर्स क्या करता है, इजीली इसको इरोड करके ले आएगा। सो देयर बाय मेकिंग सफिशिएंटली वाइडेंड वैली। क्यों, देखो जितना भी इरोजन होगा उसी की वजह से वाइडेंड वैली बनेगा, मतलब नेरो नहीं बनेगा। वहां पे हर वक्त क्या होगा, हर वक्त इरोजन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इसकी वजह से वाइडेंड वैलीज हमको देखने को मिलेगा, मतलब जो वैली बनेगा वो वाइड होगा, वो नेरो नहीं होगा। सच वैलीज आर कॉल्ड वी शेप्ड वैली, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वी शेप्ड वैली बनाता है, ठीक है। तो वो वी शेप्ड वैली क्या है, देखो यही यही यहाँ पे माउंटेन देखने को मिल रहा है, यहाँ से इस तरह की बन रहा है, ये भी शेप का वैली बना रहा है, ठीक है। सो एट सर्टेन प्लेस द रिवर मेक्स वाटरफॉल व्हिच इन मॉडर्न टाइम्स द हार्नेस्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या होगा यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है, देखो सर्टेन प्लेस द रिवर मेक्स वाटरफॉल, वाटरफॉल के हिसाब से आएगा। देखो ये इतने ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे पानी आ रहा है ना, इसे ऊपर से नीचे पानी जब आएगा, ये एक विक्टोरिया फॉल्स का दिखा रहा है तुमको। वाटरफॉल्स होता है ना, सबसे जो अफ्रीका का निगारा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, विक्टोरिया फॉल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। क्यों, ये देखो यहाँ पे नीचे एक टरबाइन लगा जाएगा और उसी टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो और क्या है, देखो ए वाटरफॉल इज ए सडन डिसेंट ऑफ वाटर ओवर ए बिग वर्टिकल स्टेप फ्रॉम ए रिवर बेड
The Niagara Falls in North America and Victoria Falls in Africa are well known the world over. But the highest waterfall is, however, the Angel Falls is Venezuela, which is about 980 meters high. तो इस जो वाटरफॉल बता रहा है, देखो कहाँ पे कौन सा वाटरफॉल लोकेटेड है, निगारा फॉल्स विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, निगारा फॉल्स हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में। विक्टोरिया फॉल्स, ये देखो निगारा फॉल्स ये नॉर्थ अमेरिका है, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका है। ये सब हम देखते हैं कि इससे भी सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल है, कहाँ पे देखने को मिलता है, एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स कहाँ पे है, वेनेजुएला में। ये याद रखो, वेनेजुएला में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि एंजल फॉल्स, वो 980 मीटर्स हाई से पानी नीचे आता है। 980 मीटर्स मतलब कितना होगा, देखो उसका जो ऊपर से नीचे आ रहा है पानी कितने मीटर से आ रहा है, देखो कितने उससे हाई से आ रहा है, कितने हाइट से आ रहा है। तो उसी हाइट से क्या होगा, नीचे पानी आएगा तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो ये देखो तुम्हारा एंजल फॉल्स, इतना इतने ऊपर से नीचे आ रहा है पानी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा जहां से पानी निकलता है, ये कहाँ पे मिलेगा हमको, वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अभी हमने पढ़े जो अपर कोर्स, रिवर्स का अपर कोर्स जहाँ पे ओरिजिन होता है, वहां से हमको ये सब वी शेप्ड वैली देखने को मिलेगा। वाटरफॉल्स, अलग अलग वाटरफॉल्स जैसे निगारा वाटरफॉल्स, विक्टोरिया वाटरफॉल्स, एंजल वाटरफॉल्स, दीज आर द वाटरफॉल्स दैट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये तुमको याद रखना है। इसके बाद देखो, रेपिड्स द रिवर्स टर्बुलेंट फ्लो, द रिवर जम्प्स ओवर एंड फॉल्स डाउनवर्ड्स कंटिन्यूअसली। ये देखो, ये इस तरह से रिवर्स क्या करता है, जंप्स करके आता है। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग पत्थर से यहाँ पे, और उसी पत्थर के ऊपर से वो जंप करता हुआ नीचे आएगा और वो कंटिन्यूअसली होगा। ठीक है, सो मेनी रैपिड्स फॉर्म्स, यहाँ पे बहुत अलग अलग रैपिड्स फॉर्म हो गए हैं। देखो ये इस तरह से रैपिड होंगे ना, ऊपर से वो पत्थर को भी लेके आ रहा है और वो ही पत्थर एक ही जगह में रह जाएगा, तो वहां पे एक रैपिड्स बनाएगा, ये है रैपिड्स। So sometimes the bed of a river is both sloping and rocky with many up and down curves। देखो उस टाइम में जो रिवर आता है, रिवर के साथ इरोड होके अलग अलग स्टोन आता है नीचे, और उसी समय क्या होता है, कुछ जो पत्थर वगैरह यहाँ पे रह जाएंगे, उसी की वजह से वो क्या होगा, रॉकी विथ मेनी अप एंड डाउन कर्व्स। अप एंड डाउन कर्व्स हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अप होगा तो यहाँ पे डाउन होगा, इस तरह की शेप हमको देखने को मिलेगा अपर कोर्स में। हियर द रिवर जम्प्स ओवर एंड फॉल्स डाउन कंटिन्यूअसली। ठीक है, जम्प्स करेगा उसके बाद उस नीचे डाउनफॉल होगा, तो इस तरह से वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। कहाँ पे, ये जो रैपिड्स बनाता है यहाँ, thereby making many rapids, तो ये वही many rapids बनाता है। The currents of the river's water cannot easily cut down the hard valley bottom। देखो करंट ऑफ द रिवर्स, जो करंट ऑफ द रिवर्स मतलब रिवर्स का जो पानी है, जो उसका बहता हुआ पानी है, वो क्या नहीं कर पाता इजिली, कोई भी हार्ड वैली बॉटम को यहाँ पे वो कट नहीं कर सकता। ठीक है, अदरवाइज रैपिड्स वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वाटरफॉल्स। वही रैपिड से क्या बनता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उससे ही वाटरफॉल भी बन सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। यही जो पत्थर यहाँ पे रहेंगे, बहुत सारे पत्थर रह जाएंगे और उसी पत्थर में से पानी नीचे आ सकता है रैपिड्स बन के। ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है। इन ए वाटरफॉल्स द टॉप इज रॉकी। वाटरफॉल में जो टॉप होता है, जहां से पानी निकलता है, यही यहाँ पे जो टॉप है, टॉप लेवल का, इसमें क्या होता है, ज्यादातर रॉकी होता है। बट अंडर लेयर आर सॉफ्ट विच इज द रिवर कैन इजीली कट। लेकिन जो अंडर मतलब इसके जो नीचे का लेयर है, वो बहुत सॉफ्ट रहता है, जो कि क्या करेगा, रिवर इजीली उसको काट पाएगा। रॉकी सरफेस में क्या होता है, इजीली काट नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे रॉकी सरफेस है और जो नीचे का पर्सन है वो कैसा है, सॉफ्ट है, इसकी वजह से वो इजीली उसको कट कर पाएगा। सो द रैपिड्स कैन नॉट, सॉरी, बट इन द केस ऑफ रैपिड्स, लेकिन रैपिड्स के केस में ये नहीं होता। देखो समझो ठीक से, इन वाटरफॉल, कोई भी वाटरफॉल में जो टॉप होता है, ये उसका जो टॉप है, इसमें ज्यादा रॉक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे वो
काट ज्यादा जल्दी वो काट नहीं पाएगा, ठीक है। तो इज द रिवर कैन इजीली कट, क्या किसको हम रिवर इजीली कट कर सकते हैं, जो मतलब नीचे की निचली भाग में जो सॉफ्ट रॉक है उसको वो इजीली काट कर आ सकता है। बट इन द केस ऑफ रैपिड्स, लेकिन हम ये रैपिड्स के केस में क्या होता है, देखो बोथ द टॉप एंड वैली बॉटम्स आर रॉकी। देखो यहाँ पे टॉप और बॉटम, यहाँ का ये है बॉटम, यहाँ का यह है टॉप, दोनों सरफेस कैसे बना होता है, वो रॉक से बना होता है। सो द रैपिड्स कैन नॉट गेन हाइट और डेप्थ, इसीलिए ये रैपिड्स ज्यादा हाइट नहीं होता या डेप्थ नहीं होता। सो देयर इज नो वन डीप फॉल एज इन द केस ऑफ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल में इसीलिए क्या नहीं होता, डीप ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर इन ए रैपिड जंप्स ओवर एंड फॉल डाउन द कंटिन्यूअसली, यहाँ पे इस तरह से जो पत्थर आगे आगे जाके रह जाएगा, इससे पानी जंप करेगा, उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा, तो इसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली करता ही रहता है, ठीक है। याद रखो तुम लोग, समझ में आए, और एक बार समझा दे रहा हूँ। जो तुम वाटरफॉल में जो कुछ वाटरफॉल में देखे होगे, जो उसका टॉप होता है रॉकी शेप का, रॉक ज्यादा होते हैं, तो जो जहाँ पे रॉक ज्यादा होंगे वहां पे वो रिवर कट कर नहीं पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो रॉकी सरफेस है उसको नहीं काट पाएगा, और जो निचला भाग है उसमें सॉफ्ट रॉक होने के कारण वो ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वाटरफॉल में होता है। लेकिन तुम जो रैपिड्स में देखोगे, रैपिड्स में ज्यादा डेप्थ या ज्यादा हाइट नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर का सरफेस भी रॉकी है और नीचे का सरफेस भी रॉकी होता है, इसकी वजह से रैपिड्स में वो डेप्थ या हाइट नहीं हो सकता। देयर इज नो वन डीप फॉल्स इन द केस ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल में वो नहीं होता, ठीक है। ए सीरीज ऑफ रैपिड्स बिग और स्मॉल आर कॉल्ड कैस्केड्स। देखो जो रैपिड्स की सीरीज में जो रैपिड्स आएंगे, बहुत सारा सीरीज में जो रैपिड्स बनेगा, वो बिग और स्मॉल हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैस्केड्स बोला जाता है, कैस्केड, ठीक है। देखो सीरीज ऑफ रैपिड्स, बहुत ज्यादा रैपिड्स, देखो इस तरह से रैपिड्स बन सकता है। यहाँ पे देखो अलग अलग स्टीप लाइक शेप है, ऊपर में से फिर नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे नीचे आएगा, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको कैस्केड्स बनाया जाता है। बहुत सारे रैपिड्स मिलके इस तरह की जो रैपिड्स होंगे ना, इस तरह के जो रैपिड्स होंगे, इस बहुत सारे ऐसे रैपिड्स बना के वो क्या बना सकते हैं, इस तरह की क्या बनाएंगे, कैस्केड बनाएंगे, तो इसको कैस्केड बनाया जाता है। समझ में आया? तो naturally in this stage the river is not at all useful for navigational purpose। तो नेचुरली इसकी वजह से रिवर होता है वो यूजफुल नहीं होता नेविगेशनल पर्पज के लिए, कोई भी नेविगेशन नहीं हो सकता, कोई भी यहाँ पे नाव नहीं चल सकता। नाव चलेगा तो क्या होगा, यहाँ से देखो कैसे नाव चलेगा, यहाँ से एक रैपिड्स ऊपर में है, फिर से आएगा नीचे और एक रैपिड्स होगा, इस तरह से पत्थर होगा, तो यहाँ से नाव कैसे चल पाएगा। इसकी वजह से रैपिड्स में या वाटरफॉल में क्या होता है, जो नेविगेशन फैसिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होता, ठीक है। So the main work of the river during the upper stage is nothing but erosion and transportation। यहाँ पे मेन वर्क का अपर स्टेज का जो मेन वर्क कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें कोई भी नेविगेशन हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? सो वाटरफॉल वर्सेस रैपिड्स, वाटरफॉल्स क्या होता है, रैपिड्स क्या होता है, समझ में आया? तो और एक बार बोल दे रहा हूँ, वाटरफॉल में क्या होता है, रैपिड्स में क्या होता है। वाटरफॉल्स मतलब टॉप रॉकी, जो इसका टॉप जहां से ये निकलता है, ये टॉप लेवल में जहाँ पे वो रॉकी होता है, अंडर लेयर सॉफ्ट होता है, अंडर लेयर यहाँ पे जो नीचे आएगा ये लेयर सॉफ्ट होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से नीचे पानी आएगा तो वही जो सॉफ्ट रॉक को काट सकेगा, और वो उसमें काट काट करके क्या करेगा, हाइट बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिवर कैन कट इजिली और डिपेंड या डीप बन सकता है। लेकिन रैपिड्स में टॉप भी रॉकी होता है और बॉटम भी रॉकी होता है, जिसके कारण दोनों में क्या होगा, जो कॉट कॉट नहीं हो पाएगा, मतलब वो रिवर्स उसको काट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इस तरह की शेप हमको देखने को मिलेगा रैपिड्स में, ठीक है। ये है वाटरफॉल और ये है रैपिड्स। समझ में आया? वाटरफॉल में हाइट ज्यादा होता है और डेप्थ भी ज्यादा होता है, और रैपिड्स में हाइट और डेप्थ कुछ भी नहीं होता, इतना ही रहता है, ठीक है।
देखो ये भी रैपिड्स है, ये भी वाटरफॉल है। ये उसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कैस्केड्स क्या है तुमको पता है? कैस्केड मतलब जो सीरीज ऑफ रैपिड्स, बहुत सारे रैपिड्स होके मिल के वो क्या करेंगे, कैस्केड बनाएंगे। इस ये एक रैपिड्स, ये एक रैपिड, ये एक रैपिड्स, बहुत सारे रैपिड्स मिलके वो कैस्केड बनेंगे, उसको हम कैस्केड बोलेंगे। समझ में आया? ये कहाँ पे बनता है? अपवर कोर्स में। समझ में आ गया? तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर, आपकी जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको सुधार पाऊंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद लोअर कोर्स। ओके, इसका 3 नंबर जो कोर्स है वो है क्या? लोअर कोर्स और द डेल्टा स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? लोअर कोर्स और डेल्टा स्टेज। मिडिल का शायद यहाँ पे नहीं, छूट गया है, बाद में उसको भी बोल दूंगा अगर कोई क्लास मिलेगा तो। ठीक है, तो लोअर कोर्स, मिडिल कोर्स में क्या होता है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। लोअर कोर्स का और तो डेल्टा, जो लोअर कोर्स मतलब जहां से ये रिवर्स आके ड्रेन होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। देखो, द लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर बिफोर इट मर्ज इनटू द सी। सी से जो मर्ज होने से पहले क्या होता है? मर्ज होने से पहले इस तरह की शेप बनाता है, डेल्टास बनाता है, अलग अलग इस तरह से डेल्टास बनाता है। तो मुझे कमेंट करो यहाँ पे, जो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टास का नाम क्या है? सभी लोग जो भी देख रहे हो ना ये वीडियो देख के मुझे बताओ कि सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है और उसका नाम क्या है? ठीक है, सो इट स्पीड्स नाउ स्लो डाउन। मिडिल में इसका स्पीड रहेगा, लेकिन जो लास्ट कोर्स लोअर कोर्स में होगा वो उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, for it carry the sediment of its brought with it. Its speed now slow down and becomes quite difficult. ठीक है, बहुत स्लो हो जाएगा। जो यहाँ पे स्लीप मतलब जो क्या बोलते हैं, स्लोपिंग ज्यादा नहीं है, इसके कारण से यहाँ पे बहुत स्लोली आएगा। सो द डिपोजिशन प्रोसेस बिगिन विथ ए रैपिड स्पीड। रैपिड स्पीड मतलब एक स्मॉल स्पीड में वो डिपोजिशन करेगा। द लेवल ऑफ इट्स बेड राइजेस। जो बेड उनका, जो बेड मतलब ये एक ही, ऐसे एक ही में आ रहा था ना, वो ऐसे नहीं आके क्या करा, इधर से चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। देखो हो रहा है ना, ये इधर चला जा रहा है, कुछ इधर चला जा रहा है। ये सी है, देखो मर्ज इन द सी लिखा है, मर्ज इनटू द सी। सी में वो जब मर्ज होगा, सी में जब मर्ज होगा उसी टाइम में ये अलग अलग दिशा में जाएंगे। यहाँ पे कुछ जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ जा रहे हैं, तो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, जब ये सी में मिल जाएगा, द रिवर्स गेट्स इनटू डिवाइड मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसको ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। और जो तुम्हारा मिडिल कोर्स में क्या होगा, वहां पे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो अलग एक मेन रिवर्स होगा, जैसे कि गंगा रिवर्स। गंगा रिवर्स में क्या होता है, एक मेन रिवर्स होता है, तो उसका अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होंगे। वही ट्रिब्यूटरीज क्या करेंगे, मेन रिवर्स में मिलेंगे। ठीक है, वहां पे मिलेंगे और यहाँ पे बिछड़ेंगे। ठीक है, मिडिल कोर्स में मिलेंगे और यहाँ पे लोअर कोर्स में वो बिछड़ जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, the river gets divided into many channels called distributors before it's fall into the sea. जब सी से मिलने से पहले ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज बना जाएंगे, अलग अलग स्टेप में जाके अलग अलग जगह में मिल जाएंगे। Those are from the deltas of the river which contains deposit alluvium or soil and hence they are very fertile. यहाँ पे जो भी क्या होगा, डेल्टास बनाएंगे ये लोग, उसी का जो सोयल या मिट्टी होता है वो एल्यूमिनियम वाला सोयल होता है, वो ज्यादा फर्टाइल्स होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी तरह से होगा, फर्टाइल्स होगा तो अच्छी तरह से एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेल्टास बनता है। ठीक है, सो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग हो रहा है। फर्टाइल्स, डेल्टास आइलैंड्स, डेल्टा लैंड्स, यहाँ पे डेल्टास लैंड्स बनता है। एग्जांपल ऑफ फेमस डेल्टास, ये फेमस डेल्टास का नाम मुझे बताओ क्या है उसका नाम। ठीक है, तो लोअर कोर्स में इस रिवर्स का एंड हो जाता है और वहीं पे वो सी में मिल जाता है। ठीक है, ये देखो उसका इमेज भी क्या क्या कर रहा है ये, पर देख लेते हैं थोड़ा, इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या है।
ये ओरिजिन जहां से रिवर का ओरिजिन हो रहा है, ये है अपर कोर्स। अपर कोर्स याद रखो, ठीक है, यही है अपर कोर्स। यहीं से निकलता है माउंटेन से, ये रिवर इस तरह से निकलता है, और जहां पे ये निकलता है उसको क्या बुलाया जाता है, अपर कोर्स। और यही अपर कोर्स से स्लोप ज्यादा होने के कारण इतने इतने रॉक, बड़े बड़े रॉक को भी वो क्या करेगा, नीचे खिसक लाएगा, ठीक है। तो ये है अपर कोर्स, ये है मिडिल कोर्स, ठीक है, ये है अपर कोर्स, ये है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या होता है, इस तरह से मियांडर बनेगा, इसको मियांडर बोलते हैं। जो सांप की तरह जा रहा है ना पानी, इसको मिडिल कोर्स बोलते हैं। यहाँ पे और क्या होगा, ट्रिब्यूटरीज मिल सकते हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज और कोई से रिवर्स आके मिलेगा यहाँ पे, तो इसका रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज बन जाएगा, ठीक है। तो ये मिडिल कोर्स में क्या होता है, इस तरह से मियांडर बनाता है, और बाद में जाके मियांडर वो क्या होता है, ऑक्सबो लेक्स भी यहाँ पे बन सकता है। ऑक्सबो लेक ज्यादातर मिडिल कोर्स में बनता है। ऑक्सबो लेक कैसे बनेगा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन करेगा, और कुछ ऐसा टाइम आएगा ये यहाँ से बिछड़ जाएगा, इतने भाग, और यहाँ पे एक ऑक्सबो मतलब ऑक्स का जो खुरा होता है उसी की शेप में एक लेक्स बन जाएगा, उसको एक्सबो लेक्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मिडिल कोर्स में होता है। और फाइनली जाके डेल्टास बनाता है, कहाँ पे डेल्टास बनता है, कहाँ पे, ये सी में, सी में यहाँ पे डेल्टास बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, सी में मिलेगा, और ये लोअर कोर्स है, ठीक है, ये लोअर कोर्स, समझ में आ गया। ओ, सो कंपैरिजन ऑफ माउंटेन ग्लेशियर एंड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब एक नया टॉपिक के में आएंगे, कंपेयर करेंगे जो माउंटेन के ग्लेशियर है और कॉन्टिनेंटल के ग्लेशियर है, इन दोनों में से हमको कंपैरिजन करना है। समटाइम ग्लेशियर किसे बोलते हैं, ये याद रखो पहले, ग्लेशियर किसे बोला जाता है, व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर्स जो होते हैं माउंटेन्स में भी देखने को मिलते हैं, और कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंट में, महादेश में। और ग्लेशियर होता है क्या, बर्फ का एक चादर जैसा ढका हुआ होता है। देखो ये माउंटेन है, माउंटेन में बर्फ जैसा एक बर्फ 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 जो क्या करेगा, यहाँ पे ढका हुआ रहता है, ठीक है, वो माउंटेन में होता है। कॉन्टिनेंटल में इस तरह के इस तरह से वो बर्फ को देखने को मिलता है, जैसे कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका में क्या देखने को मिलता है, सभी जगह बर्फ देखने को मिलता है, क्योंकि वो पोल्स एरिया में है। वो आगे नहीं देखेंगे पोल्स में क्यों बर्फबारी होता है, वो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल के एरिया में वहाँ पे ज्यादातर आइस या ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो इसमें कंपैरिजन करेंगे, माउंटेन ग्लेशियर क्या है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या है। माउंटेन ग्लेशियर, they move down from the mountain tops along the valleys। देखो यह इस तरह से, पहले क्या होता था, यहाँ से रिवर आ रहा है, पानी आएगा, देखो पहले क्या करता है, पानी आ रहा है तो उसमें बीच से वैली बनता है, ये याद रखो। जब पानी आता है ना, वो मतलब रिवर जब आएगा, रिवर जब आएगा वो बी शेप वैली बनाएगा। और वहां पे अगर आइस आ गया, देखो ये बी शेप वैली बना रहा है या नहीं, बी शेप वैली बना रहा है, रिवर जब रिवर आएगा, अगर वो माउंटेन, वही रिवर में कोई ग्लेशियर चलाएगा तो वो भी शेप वैली नहीं बनाएगा, वो यू शेप वैली बनाएगा, इस तरह से यू शेप वैली बनाएगा। सो द मूव डाउन फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स along with the valleys, वैलीज के से माउंटेन के ऊपर से वो ग्लेशियर पिघलता हुआ आएगा। मूव स्लोली, वो ज्यादा स्पीड में नहीं आएंगे, वो स्लोली आएंगे, क्योंकि मास मूवमेंट होता है, और वो मास मूवमेंट स्पीडली नहीं होता, स्लोली होता है। they melt away along with their edges of those give path to the river। वो मेल्ट हो जाते हैं कहाँ पे, इसमें एजेस एंड दोस गिव पार्ट टू द रिवर्स, जहाँ पे रिवर्स देखो मेल्ट हो जाएंगे, उसकी जो एजेस होगा, और उसी में से जो रिवर्स आता हुआ होगा, उसी रिवर्स में वो मिल जाएंगे, ठीक है, मेल्ट हो जाएंगे। Rivers Ganga and Yamuna also rise as a result of such a melting of mountain glaciers। जो हमारे हिमालयन रिवर्स है, गंगा, यमुना, ठीक है, ये रिवर्स क्या करते हैं, वहां पे जो ग्लेशियर से ही पिघल के ये पानी आता है, माउंटेन के में जो ग्लेशियर है उसी ग्लेशियर से पिघल के
वो पानी रिवर्स बन के नीचे आएगा। रिवर्स गंगा एंड यमुना, ठीक है। सो द मूवमेंट्स ऑफ द माउंटेन ग्लेशियर आल्सो इरोड्स ए वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड। अभी मैंने बताया तुम लोगों को, जहां पे गंगा रिवर्स आ रहा है, गंगा रिवर्स आएगा तो रिवर्स आने तक वो क्या होगा, यू शेप वैली, सॉरी वी शेप वैली बनाएगा। अगर उसी रास्ते में कोई कोई ग्लेशियर पिघल के आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो स्लो मूवमेंट होगा तो क्या करेगा, जो पास पास के जो मिट्टी होगा उसको निकाल देगा। तो यहाँ पे भी शेप्ड और नहीं रहेगा, भी शेप यहाँ पे इरोजन हो जाएगा तो वो यू शेप्ड वैली बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखो, जब तक रिवर्स आ रहा है, रिवर्स आने तक क्या होगा, वो यू शेप्ड वैली बनाएगा, सॉरी वी शेप्ड वैली बनाएगा। और जब वहां पे ग्लेशियर आ जाएगा उसमें यू शेप्ड वैली बन जाएगा। ये है हमारा माउंटेन्स का ग्लेशियर। और कॉन्टिनेंटल का ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर व्हिच आर कंपैरेटिवली बिगर इन साइज एंड slower in movements are called continental glacier। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में वो टोटल कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है, टोटल कॉन्टिनेंट में नीचे बिछा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसका मूवमेंट बहुत स्लोली होता है। दे ऑक्युपाई लार्ज एरियाज, वो बहुत लार्ज एरिया ऑक्युपाइज करते हैं, ये सिर्फ माउंटेन में रहेंगे लेकिन ये लार्ज एरिया ऑक्युपाइज एक्सीडिंग थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में ये देखने को मिलेगा। दे आर थिक आइस शीट, बहुत मोटा सा, देखो इतना मोटा है, इतना मोटा आइस थिक शीट है। वो क्या करता है, कवरिंग द एंटायर लैंड सरफेस को वो कवर करके रखता है, ठीक है। और नीचे में वो पानी होगा, शायद पानी में पानी होता हुआ होगा। तो ये ऊपर में इतना बड़ा आइस का शीट्स देखने को मिलता है, जनरली ऑकर्स इन पोलर रीजन, ठीक है, पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन्स में ज्यादातर हमको ये कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर देखने को मिलता है, ठीक है। पोलर में क्यों होता है, क्योंकि पोलर साइड्स में जो आर्क सॉरी सन का डायरेक्ट रेज नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे पोलर पोलर रीजन में ज्यादातर ठंड देखने को मिलता है और बर्फबारी मतलब बर्फ ज्यादा होगा, वहां पे ग्लेशियर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस दोनों को कंपैरिजन कर देखो थोड़ा, स्मॉलर इन साइज, माउंटेन ग्लेशियर बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द मच लार्जर इन साइज, मतलब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से तुम कंपेयर करो तो ये बड़ा होगा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और स्मॉलर इन साइज हो जाएगा माउंटेन ग्लेशियर। तो अलोंग वैलीज, मतलब यहाँ पे वैलीज के साथ वो जाएगा, ठीक है। कवर वास्ट एंड लैंड एरिया, कवर वास्ट लैंड एरिया, बहुत जो लैंड एरिया होता है उसको वो कवर करेगा। मोर रिलेटिवली फास्टर मूवमेंट, मूवमेंट थोड़ा फास्टर होगा, किससे कंपेयर करो तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से। मेल्ट अलोंग एजेस फ्रॉम रिवर्स, ठीक है, डू नॉट फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स वहां पे देखने को तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉमन इन माउंटेन्स, माउंटेन में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये कॉमन इन द पोलर रीजन्स। तो कहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। सो देखो यहाँ यहाँ तक जब भी पढ़े हैं हम उसको, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया गया है। सो एनगेज एंड रिफ्लेक्ट, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इन सीटू इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जो रॉक्स बड़ा सा रॉक धीरे धीरे वेदरिंग होगा, मतलब वो क्या होगा, टूटेगा, उसे टूटने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोला जाता है, ठीक है। समझ में आए, इसका आंसर होगा वेदरिंग। यूसेट वैली आर फॉर्म्ड बाय, यूसेट वैली कहाँ पे फॉर्म होता है, यूसेट ग्लेशियर में, ये याद रखना, अभी मैंने तुमको पढ़ाया है कि यूसेट वैली ग्लेशियर में बनता है और वी शेप वैली रिवर में बनता है, समझ में आ रहा है, ओके। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय, सैंड ड्यून्स कैसे बनता है, इस तरह से सैंड ड्यून बनाया जाता है, इस तरह से। तो वो सैंड ड्यून्स ज्यादातर विंड और ये डेजर्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, डेजर्ट, डेजर्ट में ज्यादातर हमको देखने को मिलेगा विंड, मतलब सॉरी सैंड ड्यून्स। हिल लर्निंग, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़े और एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा। When disintegration of rocks takes place without any changes in their chemical composition, it is called physical weathering। Physical weathering किस तरह से हो रहा था हमारे, ठीक है, और डिसइंटीग्रेट होगा, धीरे धीरे होगा और केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज देखने को मिलेगा, इसकी वजह से वो टूट जाएगा। When a chemical reactions, water or air, certain portions of rocks are dissolved producing interesting features like cavities, sinkholes, caverns, etc. It is called chemical weathering। वो chemically होगा weathering, ये भी हम पढ़ चुके हैं,
इरोजन किस तरह से होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रिवर्स आएगा, ये जो उसका किनारा होगा उसी किनारों से इरोजन करके वो ले आएगा। ग्लेशियर्स क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, माउंटेन में भी, और कहाँ पे देखने को मिलता है, वो कॉन्टिनेंटल मतलब जो पोल्स एरिया में देखने को मिलता है। वाइंड एक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन डेजर्ट एरिया सच एज थर्ड डेजर्ट। वाइंड एक्शन से जो सैंड ड्यून्स बनता था, ठीक है, वो थर डेजर्ट में, इंडिया का जो थर डेजर्ट है उसमें देखने को मिलता है। सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, ठीक है, इसी जगह में ज्यादातर हमको सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ओके। सो मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, अर्थ के कुछ मेजर लैंडफॉर्म के बारे में भी देख लेते हैं कि किस तरह से लैंडफॉर्म्स भी हो रहा है, मतलब मेजर बड़ा बड़ा लैंडफॉर्म कैसे बनता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नाइदर इवन नॉर रेगुलर। ये याद रखो, रेगुलर कुछ भी नहीं होता अर्थ में, वो चेंजेबल है, चेंज होता ही रहता है, रेगुलर नॉट रेगुलर। इट गिव्स राइज टू द सेवरल लैंडफॉर्म्स, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाता है, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, ये सबसे मेजर लैंडफॉर्म्स है। वो छोटा छोटा लैंडफॉर्म्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये बड़ा बड़ा लैंडफॉर्म्स थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनता है, कैसे बनता है अर्थ में, किस तरह से बनता है, किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बनता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो माउंटेन्स किस तरह से बनता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। माउंटेन्स बनता कैसे है? माउंटेन इज अ हाई लैंडमास विथ शार्पली स्लोपिंग सरफेस। हमको पता है माउंटेन्स क्या होता है। हिमालयन माउंटेन का हाइट मुझे बता दो, इसका हाइट कितना है हिमालयन माउंटेन का, हाइट बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो उसका हाइट बहुत ज्यादा होता है और स्लोपिंग भी बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखना। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज, बहुत ज्यादा हाई होता है। देयर इज ए सेल्डम ए सिंगल माउंटेन, बहुत कम देखने को सिंगल माउंटेन्स देखने को मिलता है, बहुत अलग अलग माउंटेन्स से बनता है वो। दे यूजुअली occurs in chains or ranges extending over hundred of kilometers। तो यूजुअली क्या होता है, चेंज ऑफ रेंजेस, मतलब उसके जो रेंजेस है अलग अलग देखने को मिलते हैं। कुछ जगह में वो हंड्रेड्स हो जाएंगे तो कुछ जगह में थाउजेंड्स किलोमीटर्स में भी देखने को मिलेगा उसका रेंज, मतलब वो कितने हाइट तक है वो हमको अलग अलग वेरी करता है अलग अलग जगह में। ठीक है, सो द पामीर एंड द हिमालयन रेंजेस इन एशिया। द देखो पामीर, पामीर नट कहाँ पे है, पामीर नट हिमालयन माउंटेन्स के जो सबसे ऊपर है उसको पामीर नट बोला जाता है। ठीक है, उस उन्हीं में से पामीर जो है, पामीर नट है उसी में से एक राइट हैंड साइड को गया है और एक लेफ्ट हैंड साइड को गया है माउंटेन्स का लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, हिंदुकुश और कुनलुन माउंटेन बोलते हैं। एक राइट साइड गया है हिंदुकुश, लेफ्ट साइड गया है कुनलुन माउंटेन पामीर नट से। ठीक है, हिमालय रेंजेस इन एशिया, द अल्पाइन्स माउंटेन्स रेंजेस इन यूरोप। The Rockies in North America and the Andes in South America are some of the important mountain ranges of the world। यही सबसे मतलब रेंजेस वगैरह है जो वर्ल्ड में भी हमको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? एशिया में हिमालयन माउंटेन्स, अल्पाइन माउंटेन्स रेंजेस इन यूरोप, ठीक है, रॉकीज एंड एंडीज इन, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका, ये सब माउंटेन्स सबको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हिमालयन सबसे बड़ा है। उसके बाद ये देखो हिमालयन माउंटेन, एंडीज एंड रॉकीज, दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अम, कैसे बना है वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, सो माउंटेन डिफर्स इन शेप्स एंड हाइट। माउंटेन्स डिफर करता है वो शेप्स एंड हाइट से। यंग माउंटेन्स लाइक द हिमालयस आर वेरी हाई एंड हैव पॉइंटेड पीक्स। उसका पॉइंट, उसका पीक का वो कितने मीटर्स में है तुम लोग मुझे बता दो। द आल्प्स एंड द एंडीज एंड रॉकीज आर आल्सो यंग माउंटेन, ये सब यंग माउंटेन है। कन्वर्जन डाइवर्जन ये फर्स्ट क्लास में हम पढ़े हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, प्लेट दोनों का क्या होगा, दोनों प्लेट में टकराव होगा, टकराव होने से एक फोल्ड माउंटेन भी बन सकता है, ब्लॉक माउंटेन भी बन सकता है। तो यही वो फोल्ड माउंटेन है, हिमालयस एंड आंडीज एंड रॉकीज, दिस आर द फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक ओल्ड माउंटेन्स होता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल अरावली, ये बहुत साल पहले, बहुत पुराना है। ठीक है, अरावली माउंटेन्स,
वो भी फोल्ड माउंटेन था कुछ टाइम, ठीक है। अभी वो क्या हो गया है, उसमें इरोजन होके वो रेसिडुअल्स माउंटेन बन गया है, ठीक है। एंड अल्फा चेन्स आर लो इन हाइट एंड हैव राउंडेड टॉप। दिस इज बिकॉज ऑफ इरोजन बाय विंड एंड वाटर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। तो इरोजन की वजह से वहां पे इरोजन किस तरह से होता है, विंड और वाटर से, इसकी वजह से वो उसका शेप हमेशा क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये है यंग माउंटेन्स, ये है ओल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स है हिमालयस, अल्पस, एंडीज, ठीक है। हिमालयस एशिया में से, अल्पस यूरोप में है, एंडीज एंड रॉकीज है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अरावलिस जो इंडिया के राजस्थान में देखने को मिलता है, और अल्पाचाइंस, यही सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये याद रखो तुम लोग, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये बहुत साल पहले, हिमालयन माउंटेन से भी पहले ये अरावलिस और अल्बाचाइंस बना था। और अभी वो ये जगह वो क्या हो रहा है, टेबल लैंड, लाइक टेबल लैंड जैसे दिख रहा है, टेबल लैंड, ठीक है। वो इस तरह से नहीं रहेगा, इस तरह से नहीं बनेगा, ये फोल्ड माउंटेन होता है। और ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन। समझ में आ रहा है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ये माउंटेन्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से देखेंगे। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, बनता कैसे, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बनता है। कंप्रेशन कॉजेस रॉक टू फोल्ड, कंप्रेशन होता है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन बनता कैसे, ब्लॉक माउंटेन बनता कैसे, ब्लॉक माउंटेन डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा। वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनिक एरिप्शन से बनेगा, ठीक है। ये तीन टाइप्स का माउंटेन्स हमको देखने को मिलता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इन अर्थ सरफेस, ओके। अर्थ सरफेस में हमको थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। सो प्लीज प्लीज प्लीज, जिसको भी ये, जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को मेरे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग देख रहे हो, अगर अच्छा नहीं लगा फिर भी मुझे कमेंट करो, सर अच्छा नहीं लग रहा है, हम हमको ये फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, तो वो भी बोल दो। अगर अच्छा लग रहा है तो उसका भी कमेंट कर दो, सर अच्छा लग रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे बना सकता हूँ वीडियो। इसको थोड़ा शेयर, लाइक एंड कमेंट कर दो, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उसमें से तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो आ गया बोल के। सो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channels or the educations. Thank you. Okay, bye.